actually hard to find biblical scholars with whom to compare John Goldingay. It's also difficult to sort out the kinds of adjectives you might use to describe John Goldingay, in large part because we live in an age of specialization, and yet here is a scholar who has the grasp of biblical studies, Old and New Testament, and the theology that surrounds them. Here's a biblical scholar whose profound level of scholarship is forever in the service of the church. Here's a biblical scholar who never forgets that the chief aim of good biblical scholarship is proclamation, the incarnation of the Word in people's lives. In fact, one of the most impressive parts of John Goldingay's scholarship is his non-apologetic, non-defensive approach to reading Scripture as a believer firmly embedded in the church. Having worked with him these several years, having stood with him shoulder to shoulder, what I can tell you is that he is as advertised. Daniel chapter 7. Daniel wrote, In the first year of King Belshazzar of Babylonia, I had some dreams and visions while I was asleep one night, and I wrote them down. The four winds were stirring up the mighty sea, when suddenly 4 powerful beasts came out of the sea. Each beast was different. The first was like a lion with the wings of an eagle. As I watched, its wings were pulled off. Then it was lifted to an upright position and made to stand on 2 feet, just like a human, and it was given a human mind. The second beast looked like a bear standing on its hind legs. It held 3 ribs in its teeth, and it was told, Attack! Eat all the flesh you want. The third beast was like a leopard, except that it had 4 wings and 4 heads. It was given authority to rule. The fourth beast was stronger and more terrifying than the others. Its huge teeth were made of iron, and what it didn't grind with its teeth, it smashed with its feet. It was different from the others, and it had horns on its head, 10 of them. Just as I was thinking about these horns, a smaller horn appeared, and 3 of the other horns were pulled up by the roots to make room for it. This horn had the eyes of a human, and a mouth that spoke with great pride. Thrones were set up while I was watching, and the eternal God took his place. His clothing and his hair were white as snow. His throne was a blazing fire with fiery wheels, and flames were dashing out from all around him. Countless thousands were standing there to serve him. The time of judgment began, and the books were opened. I watched closely to see what would happen to this smaller horn because of the arrogant things it was saying. Then, before my very eyes, the fourth beast was killed, and its body destroyed by fire. The other 3 beasts had their authority taken from them, but they were allowed to live a while longer. As I continued to watch the vision that night, I saw what looked like a Son of Man coming with the clouds of heaven, and he was presented to the eternal God. He was crowned king and given power and glory, so that all people of every nation and race would serve him. He will rule forever, and his kingdom is eternal, never to be destroyed. Daniel wrote, I was terrified by these visions, and I didn't know what to think. So I asked one of those standing there, and he explained, The 4 beasts are 4 earthly kingdoms. But God Most High will give his kingdom to his chosen ones, and it will be theirs forever and ever. I wanted to know more about the fourth beast, because it was so different,
and much more terrifying than the others. What was the meaning of its iron teeth and bronze claws, and of its feet that smashed what the teeth and claws had not ground and crushed? I also wanted to know more about all 10 of those horns on its head. I especially wanted to know more about the one that took the place of 3 of the others, the horn that had eyes and spoke with arrogance and seemed greater than the others. While I was looking, this horn attacked God's chosen ones and was winning the battle. Then God Most High, the eternal God, came and judged in favor of his chosen ones, because the time had arrived for them to be given the kingdom. Then I was told by the one standing there, The 4th beast will be a 4th kingdom to appear on earth. It will be different from all the others. It will trample the earth and crush it to pieces. All 10 of those horns are kings who will come from this kingdom, and 1 more will follow. This horn will be different from the others, and it will conquer 3 other kings. This king will speak evil of God Most High, and he will be cruel to God's chosen ones. He will try to change God's law and the sacred seasons, and he will be able to do this for a time, 2 times, and half a time. But he will finally be judged, and his kingdom completely destroyed. Then the greatest kingdom of all will be given to the chosen ones of God Most High. His kingdom will be eternal, and all others will serve and obey him. That was what I saw and heard. I turned pale with fear and kept it all to myself. दानियल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 7। दानियल अध्याय 7। बाबुल के राजा बेलशस्सर के पहले वर्ष में दानियल ने पलंग पर स्वप्न देखा। तब उसने वह स्वप्न लिखा और बातों का सारांश भी वर्णन किया। दानियल ने यह कहा कि मैंने रात को यह स्वप्न देखा कि महासागर पर चौमुखी आंधी चलने लगी। तब समुद्र में से 4 बड़े बड़े जीव जो एक दूसरे से भिन्न थे निकल आए। पहला जानवर सिंह के समान था और उसके उकाब के से पंख थे, और मेरे देखते देखते उसके पंखों पर नोचे गए और वह भूमि पर से उठाकर मनुष्य की नाई पांव के बल खड़ा किया गया और उसको मनुष्य का हृदय दिया गया। फिर मैंने एक और जीव देखा जो रीछ के समान था और एक पांजर के बल उठा हुआ था, और उसके मुंह में दांतों के बीच 3 पसूली थी, और लोग उससे कह रहे थे कि उठकर बहुत मांस खा। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखा कि चीते के समान एक और जीव जंतु है, जिसकी पीठ पर पक्षी के से 4 पंख है, और उस जंतु के 4 सिर है, और उसको अधिकार दिया गया। फिर इसके बाद मैंने स्वप्न में दृष्टि की और देखा कि चौथा एक भयंकर और डरावना और बहुत ही सामर्थी जीव है, और उसके लोहे के बड़े बड़े दांत है। वह सब कुछ खा डालता है और चूर चूर करता है, और जो बच जाता है उसे पैरों से रौंदता है, और वह पहले सब जानवरों से भिन्न है, और उसके 10 सींग है। मैं उन सींगों को ध्यान से देख रहा था तो क्या देखा कि उनके बीच एक और छोटा सा सींग निकला, और इसके बल से उन पहले सींगों में से 3 उखाड़े गए। फिर मैंने क्या देखा कि इस सींग में मनुष्य की सी आंखें और बड़ा बोलने वाला मुंह भी है। मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए हैं, और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ, जिसका वस्त्र हिम सा उजल और सिर के बाल निर्मल ऊन सरीखे हैं। उसका सिंहासन अग्निमय और इसके पहले धधकती हुई आग के से देख पड़ते हैं। उस प्राचीन के सन्मुख से आग की धारा निकलकर बह रही है। फिर हजारों हजारों लोग उसकी सेवा टहल कर रहे हैं, और लाखों लाख लोग उसके सामने हाजिर हैं। फिर न्यायी बैठ गए और पुस्तकें खोली गई। उस समय उस सिंह का बड़ा बोल सुनकर मैं देखता रहा,
और देखते देखते अंत में क्या देखा कि वह जानवर घात किया गया और उसका शरीर धधकती हुई आग से भस्म किया गया और रहे हुए जंतुओं का अधिकार ले लिया गया, परंतु उनका प्राण कुछ समय के लिए बचाया गया। मैंने रात में स्वप्न में दृष्टि की और देखा कि मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा है और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और वे उसको उसके समीप लाए। तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। उसकी प्रभुता सदा की और अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। और मुझ दानियल का मन विकल हो गया और जो कुछ मैंने देखा था उसके कारण मैं घबरा गया। तब जो लोग आसपास खड़े थे उनमें से एक के पास जाकर मैंने उन सारी बातों का भेद पूछा। उसने यह कहकर मुझे उन बातों का अर्थ बता दिया कि उन 4 बड़े बड़े जानवरों का अर्थ 4 राज्य है जो पृथ्वी पर उदय होंगे, परंतु परम प्रधान के पवित्र लोग राज्य को पाएंगे और युगान युग उनके अधिकारी बने रहेंगे। तब मेरे मन में यह इच्छा हुई कि उस चौथे जानवर का भेद भी जान लूं, जो और तीनों से भिन्न और अति भयंकर था। उसके दांत लोहे के और नख पीतल के थे। वह सब कुछ खा डालता और चूर चूर करता और बचे हुओं को पैरों से रौंद डालता था। फिर उसके सिर के 10 सिंगों का भेद, और जिस ओर सिंग के निकलने से 3 सिंग गिर गए, अर्थात जिस सिंग की आंखें और बड़ा बोलने वाला मुंह और सब और सिंगों से अधिक भयंकर था, उनके भी भेद जानने की मुझे इच्छा हुई। और मैंने देखा था कि वह सिंह पवित्र लोगों के सब लड़ाई करके उन पर उस समय तक प्रबल भी हो गया, जब तक कि वह अति प्राचीन न आ गया और परम प्रधान के पवित्र लोग न्यायी न ठहरे और उन पवित्र लोगों के राज्याधिकारी होने का समय न आ पहुंचा। उसने कहा, उस चौथे जानवर का अर्थ एक और चौथा राज्य है जो पृथ्वी पर होकर और सब राज्यों में भिन्न होगा और सारी पृथ्वी को नाश करेगा और दाव दाव कर चूर करेगा। और उन 10 सिंगों का अर्थ यह है कि उस राज्य में से 10 राजा उठेंगे और उनके बाद उन पहलों से भिन्न एक और राजा उठेगा जो 3 राजाओं को गिरा देगा और वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें करेगा और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा और समयों और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा, वरन 3.5 काल तक वे सब उसके वश में कर दिए जाएंगे और न्यायी बैठेंगे। तब उसकी प्रभुता छीनकर मिटाई और नाश की जाएगी, यहाँ तक कि उसका अंत ही हो जाएगा। तब राज्य और प्रभुता और धरती पर के राज्य की महिमा परम प्रधान ही की प्रजा अर्थात उसके पवित्र लोगों को दी जाएगी। उसका राज्य तो सदा का राज्य है और सब प्रभुता करने वाले उसके अधीन होंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। इस बात का वर्णन तो मैं अब तक कर चुका, परंतु मुझ दानियल के मन में बड़ी घबराहट बनी रही और मैं भयभीत हो गया और मैं इस बात को अपने मन में रखे रहा। When we move now to Daniel chapter 7, we come to the second half of the book that's dominated by visions. और अभी हम जब दानियल के 7वें अध्याय में आते हैं, तब हम इस पुस्तक के दूसरे भाग में आते हैं जिसके अंदर अनेक दर्शनों को लिखा गया है। The first vision is extremely strange. Well, they're all rather strange, but this one is especially strange. सबसे पहला जो दर्शन है वो बहुत ही रहस्यमय, बहुत ही अलग है। हर एक दर्शन अलग ही है, परंतु ये वाला जो है पहला वाला वो बहुत ही अलग और रहस्यमय है। It's a vision of horrific animals. और ये दर्शन के अंदर बहुत ही डरावने जानवरों का वर्णन किया गया है। A few months ago,
My wife and I went around the 7 cities in Western Turkey to whose churches John wrote the book of Revelation. और कुछ महीनों पहले ही मैं और मेरी पत्नी जो है वो जो पश्चिमी टर्की है उसकी 7 अलग-अलग शहरों में हम गए थे, जिन शहरों को योहन जो प्रेरित था उसने प्रकटीकरण या फिर प्रकाशित वाक्य के पुस्तक के अंदर जो खत लिखे थे उसके बारे में उन शहरों को हमने मुलाकात ली थी। They are huge Roman cities that are mostly now simply ruins. और ये तो बड़े-बड़े पुरातन काल के रूमी शहर थे जो अब सिर्फ खंडर थे। There are modern cities on the site of 2 or 3, but none of the 7 has much of a Christian presence there. और उन 7 में से 2 या 3 के आजू-बाजू में बड़े-बड़े शहर थे, आधुनिक शहर थे, परंतु इन 7 में से एक भी शहर के अंदर ज्यादा मसीही प्रभाव हम देख नहीं पाए थे। There are very few Christians that you're going to find. Most of the last Christians were moved across to Greece after the First World War. और बहुत ही कम मसीही लोगों का आप वहां पर पाएंगे। यदि कोई मसीही मिले भी तो भी हम देखते हैं कि पहले विश्व युद्ध के बाद वो लोग भी ग्रीस के तरफ चले गए थे रहने के लिए। In the background of the stories in Daniel and of these visions is the prospect of the same thing happening to the people of God. और दानियल के इस कहानी के ये जो संदर्भ है इसके अंदर भी हम देखते हैं कि परमेश्वर के लोगों के साथ ऐसा ही कुछ हो रहा है यहाँ पर। They are called the people of the holy ones on high, the saints. और उन्हें परमेश्वर जो उच्च स्थान पर विराजमान हमारा परमेश्वर है उनके लोग कहा जाता है, उन्हें संत कहा जाता है। But in Jerusalem, as in these cities in Turkey, being the saints didn't come to count for much. और यहाँ पर देखते हैं यरूशलेम के अंदर संत होना ये इसका इतना कुछ महत्व नहीं था। The vision in Daniel chapter 7 backtracks into the time of Belshazzar and thus into the time of the Babylonian Empire. और हम देखते हैं कि दानियल 7 के अंदर जो बेलशास्सार के समय की जो बात लिखी गई थी उस समय भी हम देखते हैं कि इस बात को यहाँ पर अलग रीति से दिखाया गया है। It covers the sequence of empires that then unfolds over 4 centuries, from the middle of the 6th century to the middle of the 2nd century. और इस पूरे अध्याय के अंदर हम देखते हैं कि अलग-अलग राज्यों का जो समय के तौर पे जो उन लोगों ने राज किया उसके बारे में 4 सदियों के अंदर लिखा गया है। 4 सदियों का इतिहास वहां पर लिखा गया है जो 6वीं सदी के मध्यकाल से लेके दूसरी सदी ईस्वी सन पूर्व तक वहां पर उसका वर्णन किया गया है। It starts off with Babylon and it ends up with Greece. हम देखते हैं कि बाबिलोन से उसकी शुरुआत होती है और ग्रीस से उसका अंत होता है। When it comes to Greece, the original Greek animal was Alexander the Great. और यहाँ पर हम देखते हैं यदि ग्रीस की हम बात करें तो जो असली ग्रीक जो पशु था वो तो सिकंदर महान था। In the 330s, Alexander the Great conquered the Middle East. और हम देखते हैं कि 330 ईस्वी सन पूर्व के अंदर सिकंदर महान ने पूरी जो पूर्व का जो पूरा भाग था उन सब पर उसने विजय प्राप्त किया था। But he died when he was only 32 and his empire broke up and much of it came under the rule of one or other of his generals. और हम देखते हैं कि वो केवल 32 साल की उम्र में ही मर गया था और फिर उसका जो पूरा साम्राज्य था वो 1 या फिर 2 या 3 जो उसके अंतर्गत जो फिर उसके जो नीचे जो राज कर रहे थे उनके हाथ में सब चला गया था। So in the 2nd century, Israel is under the control of one of these sub-empires based in Syria. और हम देखते हैं कि एक दूसरे सदी के अंदर ईस्वी सन पूर्व दूसरी सदी के अंदर यहूदा या फिर इजराइल जो पूरा राज्य है वो ऐसे ही एक सरदार के राज्य के अंतर्गत में आता था सीरिया के अंदर। The king is now Antiochus IV, who called himself Epiphanes, which is a title that suggested he was a manifestation of God. और यहाँ पर अब जो राजा है वो एंटियोकस 4 है जो अपने आप को एपिफनीज मानता है और इसका मतलब है कि वो परमेश्वर का प्रतिरूप है।
if he describes himself as the manifestation of God, he is speaking against the God who is actually the God on high. और यहाँ पर यदि वो कह रहा है कि वो परमेश्वर का प्रतिरूप है, तो दरअसल में वो तो स्वर्ग में बैठे हुए हमारे परमेश्वर के विरुद्ध में झूठ या फिर दुर्भाषण कर रहा है। Presumably God didn't like that, and the Judahites, the Israelites, didn't like it either. और यहाँ पर हम देखते हैं सचमुच में परमेश्वर को भी वो पसंद नहीं आया और इजरायली और यहूदी लोगों को भी ये बिल्कुल बात पसंद नहीं आई थी। The Israelites tended to engage in plotting of their own that eventually led Antiochus to impose direct rule on them. और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहूदी लोगों ने कुछ करके ऐसी गलती की जिन्होंने अपने विरुद्ध ही कार्यरत हो गए वे, और एंटियोकस 4 जो है वो सीधी रीति से उनका राजा बन गया। Antiochus, the vision says, made war on the holy ones, the saints, and overcame them. और यहाँ पर लिखा है कि एंटियोकस 4 जो है उसने परमेश्वर के पवित्र लोगों के ऊपर युद्ध जाहिर किया और उनके ऊपर विजय प्राप्त किया। And Antiochus banned worship in accordance with the Torah. और एंटियोकस ने जो है वो तोरा के हिसाब से जो आराधना थी उस पर पूरा प्रतिबंध ला दिया। So what will happen now? Will God intervene? तो अब क्या होने वाला है? क्या परमेश्वर इसमें दरमियानगिरी करेंगे अपनी? The vision moves to describe a scene in God's heavenly court. और यहाँ पर ये जो दर्शन है वो आगे जाके परमेश्वर का जो स्वर्गीय कचहरी है उसमें वो जाता है। God is pictured as an august senior figure, the Ancient of Days in the old translations in English. और परमेश्वर को यहाँ पर हम देखते हैं कि एक बहुत ही वृद्ध ऐसे व्यक्ति के तौर पे या फिर बहुत ही सामर्थ्यवान या फिर जो पुरातन काल के जो दिन, ऐसे शब्दों के अंदर परमेश्वर को वहां पर चित्रांकित किया गया है। Another human figure is presented before this august figure, and he is given supreme authority in place of the four empires. और यहाँ पर एक और मानवीय जो प्रतिमा है वो ऐसे महान परमेश्वर के आगे रखी गई है जिस व्यक्ति को या फिर जिस मानव प्रतिमा को हर एक चारों साम्राज्यों के ऊपर अधिकार दिया गया है, ऐसे वहां पर दिखाया है। This person who is given authority is described as someone like a human being. और यहाँ पर इस व्यक्ति को जिसको अधिकार दिया गया है चारों राज्यों के ऊपर, उसे एक मानव के तौर पे दिखाया गया है, एक मानव हो वैसा। More literally, is described as one like a son of man. और बहुत ही स्पष्ट रीति से अगर देखें तो वहां पर लिखा है कि वो एक मनुष्य पुत्र की तरह है। Now, in Aramaic, the language here, or in Hebrew, an expression like son of man is a poetic way of saying human being. और यहाँ पर अरामीक भाषा में जो यहाँ पर लिखी गई है और हिब्रू भाषा में मनुष्य पुत्र का मतलब यह है कि कोई एक मनुष्य है, कोई साधारण व्यक्ति है। Later Jewish thinking pictured this human being, this son of man, as an actual individual, which is part of the background to the use of the expression son of man in the Gospels. और फिर उसके बाद हम देखते हैं उसके बाद जो यहूदी विचार करने वाले जो लोग आए, उन लोगों ने फिर इसे एक व्यक्तिगत शीर्षक के तौर पे उपयोग किया, जिसका उपयोग हम आगे जाके फिर सुसमाचारों के अंदर भी पाते हैं, जो यीशु मसीह के लिए भी मनुष्य पुत्र का जो शीर्षक है उन लोगों ने उपयोग किया था। But in Daniel, it's explained that this person, like a human being, stands for the people of the holy ones on high. और यहाँ पर जो दानियल के दर्शन के अंदर जो समझ हमें दी गई है वो ये है कि ये जो मनुष्य पुत्र यहाँ पर खड़ा है वो परमेश्वर के पवित्र लोगों के बदले में उस उच्च स्थान पर वहां पर खड़ा है। God has made a decision for this people, the people of the holy ones on high, the saints. और परमेश्वर ने परमेश्वर के लोगों के लिए, ये जो उच्च स्थान पे खड़े हुए जो लोग हैं, परमेश्वर के पवित्र लोग, इन लोगों के लिए निर्णय लिया है। In the court, he has made a decision against Antiochus's empire, symbolized by the small horn in the vision. और यहाँ पर इस दर्शन के अंदर जो छोटे से
सींग के तौर पे चिन्हात्मक रीति से जिस तरह से अंतियोकस को वहां पर दिखाया गया है, अंतियोकस को दिखाते हुए यहां पर यह दिखाया है कि परमेश्वर ने उसके विरुद्ध जो न्याय है वो दिया है। Antiochus stayed in control of Jerusalem for a little over 3 years. और अंतियोकस जो है वो यरूशलेम को अपने नियंत्रण में 3 साल तक रख पाया। Then the people of Jerusalem rebelled. परंतु उसके बाद हम देखते हैं कि यरूशलेम के जो लोग थे उन्होंने विद्रोह किया। They insist on worshipping in accordance with the Torah and cleaning up the temple. और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उन्हें तोरा के हिसाब से ही आराधना करनी है और मंदिर का शुद्धिकरण करना है। They won. God gave them the victory. और वहां पर हम देखते हैं कि वो लोग विजयी हुए, परमेश्वर ने उन्हें विजय प्राप्त किया। We'll get more detail on these events in the remainder of the visions. और हम आगे जाके आगे के दर्शनों के अंदर इस पूरे घटना के अंदर जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसे हम और गहराई से नजदीक से देखने वाले हैं। God fulfills the promise in this vision to them. परमेश्वर अपने दर्शन के लिए अपनी जो वचन है वो उनके लिए जो दर्शन दिए गए थे उसमें वो परिपूर्ण करते हैं। God doesn't give the people everything, the ultimate fulfillment yet. परमेश्वर जो है वो अब तक संपूर्ण जो परिवर्तन है या फिर संपूर्ण पूर्णता है वो उन्हें अभी तक नहीं देते हैं। But God does give them something, and something big. परंतु परमेश्वर उन्हें कुछ तो देते हैं, कुछ बड़ा। It's the first installment of that final fulfillment. और ये तो ऐसा कह सकते हैं कि वो संपूर्ण पूर्णता जो है उसकी पहली किस्त यहाँ पर परमेश्वर ने दी। When we look at the way things don't work out for the people of God, as they didn't for those churches in Turkey, then this vision invites us to remember occasions when God has fulfilled his promises. और जब हम यहाँ पर देखते हैं कि हम ऐसे दर्शनों को देखकर हम देखते हैं कि हमेशा कार्यरत जो है वो चीजें नहीं होती है, जिस प्रकार से तुर्की की उन कलीसियाओं के साथ भी हुआ था, उससे हम ये मान सकते हैं कि आज के क्षण में भी जो परमेश्वर के जो दर्शन है वो परिपूर्ण होते ही है। They encourage us to live in hope. और ये हमें प्रोत्साहित देते हैं, प्रेरणा देते हैं कि हम आशा में अपने जीवन को जिए। That's the end of our study of Daniel 7. और ये दानियल 7 के हमारी इस कहानी या फिर हमारी इस अध्ययन का अंत है।